Hello everyone and welcome to this video. In the previous video, we learned about the tangent of a circle. In this video, we will discuss the number of tangents that can be drawn from a point to a circle. Sanju and Manju like to study in a fun way. Manju is using her bangles and Sanju is using few sticks to study mathematics. Come on, let's trace the shape of the bangle on paper and make a point inside it. Now Sanju, place these sticks in such a way that each stick passes through that point. Now what can you say by looking at this situation? If we consider these sticks as lines on the circle, then we can see that all the lines intersect the circle at more than one point. And we know that a tangent intersects the circle at only one point. That is, no tangent can be drawn from this point on the circle. But this stick intersects the circle at just one point. So, is this also a tangent? No, this is not a tangent. Let's draw a line for this stick. If you extend this line further, it intersects the circle at another point too. So it is not a tangent. Absolutely perfect. Now can you try to draw a tangent by taking some other point inside the circle? We can see that tangents cannot be drawn on a circle from any point inside the circle. You might remember from the previous video that there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle. If this point is outside the circle, then how many tangents can we draw? I can't say anything about it. Come on, let's try this again on paper with the help of bangles and sticks. Let there be a point outside the circle and arrange the sticks in such a way that each stick passes through this point. So, what do you see here now? In each case, any line drawn from this point intersects the circle at 2 points. But these are the only two lines which intersects the circle at only one point. And these two lines are known as the tangents to a circle. Hence, we can say that there are exactly two tangents to a circle through a point lying outside the circle. In the third case, let's denote the tangents of all the circles by lines PA, PB, OM, ON, ST and SU respectively, which is known as the length of the tangent. If we measure PA, PB, OM, ON, ST and SU, then we find that PA and PB, OM and ON, ST and SU are mutually equal. Based on this activity, we can say that the length of tangents drawn from an external point are equal. Today in this video, we learned about the number of tangents that can be drawn from a point on a circle. Also, we came to know
that the tangents drawn from an external point to the circle are equal in length. आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी बिंदु से वृत्त पर डाली जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम स्पर्श रेखाओं पर आधारित उदाहरण देखेंगे। दो संकेंद्रीय वृत्तों यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिनकी त्रिज्याएं OM व OB क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, में बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए वीडियो को रोकें और हल करने की कोशिश कर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न से हमें मालूम है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या OM बराबर 6 सेंटीमीटर व बड़े वृत्त की त्रिज्या OB बराबर 10 सेंटीमीटर है तथा AB छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अतः कोण OMA व कोण OMB समकोण होंगे। अब समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय से हमें MB का वर्ग जमा OM का वर्ग बराबर OB का वर्ग मिलता है। OB व OM के मान प्रतिस्थापित कर आगे हल करने पर MB बराबर 8 सेंटीमीटर मिलता है। अब यदि हम बिंदुओं O व A को मिलाएं तो हमें समकोण त्रिभुज OMA मिलता है, जिसमें OA बड़े वृत्त की त्रिज्या है। समकोण त्रिभुज OMA में पुनः पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हमें AM बराबर 8 सेंटीमीटर मिलता है। चित्र से आप देख सकते हैं कि रेखाओं AM व MB के मिलने से बड़े वृत्त की जीवा AB प्राप्त होती है। इसलिए AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर होगी। यदि ध्यान दें तो पाएंगे कि बिंदु M, जो स्पर्श रेखा AB व छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है, जीवा AB को 2 बराबर भागों AM व MB में विभाजित करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, जिसकी जांच स्वयं अन्य उदाहरणों की सहायता से भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा पर आधारित एक तथ्य को समझा। अगली वीडियो में हम वृत्त और उसकी स्पर्श रेखाओं पर आधारित अन्य कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा पर आधारित एक तथ्य को समझा। आज हम वृत्त व उसकी स्पर्श रेखा पर आधारित और उदाहरण देखेंगे। केंद्र O वाले एक वृत्त पर बाह्य बिंदु यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB डाली गई हैं। दर्शाइए कि OP AB का लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वीडियो को रोककर प्रश्न को हल करने की कोशिश करें और अंत में अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में एक वृत्त जिसका केंद्र O है दिया गया है, जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई हैं।
और हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। हमें सिद्ध करना है कि OP AB का लंब समद्विभाजक हैं, जिसके लिए हमें AC बराबर BC तथा कोण ACP व कोण BCP समकोण दिखाने हैं। OA व OB को जोड़ते हैं, जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिभुज PAO व त्रिभुज PBO में समीकरण 1 से PA बराबर PB है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि PA व PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। साथ ही कोण PAO व PBO समकोण हैं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंब होते हैं तथा समीकरण 2 से AO व BO बराबर हैं। अतः SAS सर्वांग समता कसौटी के अनुसार त्रिभुज PAO व PBO सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों से हमें कोण APO बराबर कोण BPO मिलता है, जिसे हम समीकरण 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब त्रिभुजों PAC व PBC में आप देख सकते हैं कि PA बराबर है PB के, कोण APC बराबर है कोण BPC के तथा PC उभयनिष्ठ भुजा है। पुनः SAS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज PAC व PBC सर्वांग सम होंगे, जिससे हमें समीकरण 4 व 5 मिलती है। आप देख सकते हैं कि कोण ACP व कोण BCP रैखिक युग्म को दर्शाते हैं, इसलिए दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। यहाँ समीकरण 5 से कोण ACP बराबर कोण BCP अथवा कोण BCP बराबर कोण ACP रखने पर हमें समीकरण 6 मिलती है। अतः समीकरण 4 व 6 की सहायता से हम कह सकते हैं कि OP AB का लंब समद्विभाजक है। इस वीडियो में वृत्त व उसकी स्पर्श रेखाओं पर आधारित एक उदाहरण देखा। उम्मीद है आपको अब वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित तथ्य अच्छे से समझ आ गए होंगे।